So today we would be seeing an important concept, and that concept is called mapping parameters and variables. This is very important in real time. Reason being is we never do hard coding in the mappings or the workflows or the sessions which we create. There will be always the parameterization which we would be doing. So let's see what is mapping parameters and variables. The first thing is mapping parameters. See the definition. MP, nothing but mapping parameter. Mapping parameter are those values which does not change during the session run. You can consider this parameter as a constant value and variable as a changing value, just to keep an identification of the definition. So what are mapping parameters? Mapping parameters are those values which does not change during the session run. Which means that whenever your session is getting executed, and if you have defined a mapping so mapping parameters are those values which does not change during the session run. Whenever your session is executed, and if you have defined a mapping parameter, that value will always remain same. Just to see a small explanation, let me open on MS Paint. Let's say this is my source. Let's say this is my source qualifier. Let's say in between I have used an expression transformation, and let's say this is my target table. Let me draw the arrows so that this is going, and let me write the names over here. So let's say this is source, this is source qualifier, this is expression, and this is your target table. This is a simple mapping, and now what you have done is you have created a mapping parameter, and you have defined that value as, let's say for example, that value is 10. When you execute this workflow, this mapping will run, correct? When the mapping is running, this value will not change. It will be constant throughout the mapping. That is the first thing, first definition. Mapping parameter are those values which does not change during the session run, and they are also constant. Second thing, also after the session run, it does not change. Let's say when I am running for the first time, so this value will be 10 only. So when I am running for the first time, this value will be 10, and even if I am running for the second time, so again the value would be same. It will never change. So that's what the definition says. Mapping parameter are those values which does not change during the session run, and they are constant. Also after the session run, it does not change. I have given a small explanation. MP stands for mapping parameter, and this is a bonus column. What I have defined, 500. For the first time, salary REA 500, commission 100. These are the two ports coming from your source. In expression transformation, हम क्या लिखते हैं? Salary plus commission. I have just added one more thing, plus my mapping parameter. So source से salary कितनी आ रही है? Commission, और हमने mapping parameter कितना define किया है? So 500 plus 100 is 600 plus 500 is 1100. So the output is 1100. Mapping parameter are those values which does not change during the session run, and they are constant. Also after the session run, it does not change. अब मैं जब next time इसको चला रहा हूँ, can you see the second time? This value is constant. Change हो गई है यहाँ पे? नहीं change हो गई है. अब मेरी salary आ रही है 900, commission आ रहा है 100. So 900 plus 100 is what? 1000, and my mapping parameter is 500. So the output would be 59. So you always have to remember, mapping parameters are those values which does not change during the session run and also after the session run. They are always constant. Any questions? Simple है.
कांस्टेंट जैसे हम लोग डिफाइन करते हैं जो कभी चेंज नहीं होता है, इट्स सेम लाइक दैट. अंडरस्टूड? नाउ लेट्स गो टू द सेकंड डेफिनेशन, मैपिंग वेरिएबल्स. एज द नेम सजेस्ट वेरिएबल्स, सो वेरिएबल्स क्या होते हैं? चेंजिंग. लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन. मैपिंग वेरिएबल्स आर दोज वैल्यूज विच चेंजेस ड्यूरिंग द सेशन रन. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? लेट मी कम टू द सेम मैपिंग अगेन, और इसको मैं इरेज कर देता हूँ. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. मैंने एक मैपिंग वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है और उसकी वैल्यू मैंने दी है 10 फॉर एग्जांपल. ठीक है. नाउ व्हाट्स द डेफिनेशन इज सेइंग, मैपिंग वेरिएबल आर दोज वैल्यूज व्हिच चेंजेस ड्यूरिंग द सेशन रन. जब मेरा ये सेशन एग्जीक्यूट हो रहा है, हो सकता है कि मैंने यहाँ पे कुछ लॉजिक लिखा होगा. मैपिंग वेरिएबल प्लस लेट्स से 10. सो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 20. करेक्ट. सो ये जो मैपिंग वेरिएबल की वैल्यू है, ये ड्यूरिंग द सेशन चेंज हो रही है. अंडरस्टूड? So that's what here it is said, it changes during the session run and the change value is saved in repository after the successful session run, which means that ये क्या होगा? ये 20 आपके टारगेट टेबल में राइट होगा. अब इस मैपिंग वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20, नॉट 10. बट कांस्टेंट में क्या हो रहा था? सेम वैल्यू वाज स्टोर्ड. अब मैं जब इसको सेकेंड टाइम रन कर रहा हूं, एंड फॉर द नेक्स्ट रन चेंज्ड वैल्यू इज पिक्ड इन द ऑर्डर ऑफ मैपिंग वेरिएबल एग्जीक्यूशन एंड देन प्रोसेस्ड. ये ऑर्डर ऑफ मैपिंग वेरिएबल एग्जीक्यूशन मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा. एज ऑफ नाउ रिमेंबर, इतना ध्यान रखो, इट विल पिक द चेंज वैल्यू. अब जब ये नेक्स्ट टाइम रन होगा तो मैपिंग वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20. यहाँ पर आएगा 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा? सो मेरा आउटपुट क्या रहेगा? 30 यहाँ पे सेव हो जाएगा, फिर वापस आएगा 30 प्लस 10 40 एंड सो ऑन. अंडरस्टूड? तो हो क्या रहा है? मैपिंग वेरिएबल की वैल्यू ड्यूरिंग द सेशन रन चेंज हो रही है. कांस्टेंट का क्या था? इट वाज सेम. अंडरस्टूड? लेट्स सी अ स्मॉल एग्जांपल फॉर मैपिंग वेरिएबल्स आल्सो. MV is a mapping variable. Date. अब डेट क्या डिफाइन की है मैंने? 1 September 2016. ठीक है. Before explaining this, I'll explain you what is setmax variable and all those things. फिर मैं ये एग्जाम्पल पे आता हूँ. ठीक है. So we have 4 things. Setmax variable, as the name suggests, maximum. ये क्या करता है? Out of the given 2 values, it picks the maximum value. set min वेरिएबल क्या करेगा? आउट ऑफ द गिवन 2 वैल्यूज और 2 आर्ग्यूमेंट्स इट विल पिक द मिनिमम वैल्यू. ठीक है. सेट काउंट वेरिएबल. सेट काउंट वेरिएबल क्या करता है? इंक्रीमेंट्स द वेरिएबल वैल्यू बाय 1. रिमेंबर हम लोग ने सीक्वेंस जनरेट किया था. कैसे जनरेट किया था? सीक्वेंस जनरेटर ट्रांसफॉर्मेशन है, और दूसरा मेथड हमने किया था एक्सप्रेशन में वेरिएबल पोर्ट ऐड किया था. ठीक है. सो यू कैन जनरेट सीक्वेंस यूजिंग दिस फंक्शन आल्सो. ये कुछ नहीं करता है, जितने आपके रिकॉर्ड्स आएंगे आपका 1 by 1 इंक्रीमेंट होते जाएगा. सिंपल एंड स्ट्रेट. सेट वेरिएबल, दिस इज अ बिट डिफरेंट विथ दीज टू. ये मैं आपको प्रैक्टिकली जब करके बताऊंगा ना, आपको अच्छे से समझेगा. As of now, just understand theoretically. Setmax variable क्या होता है? रो बाय रो चेंज होता है. Setmin variable क्या होता है? अगेन रो बाय रो चेंज होता है. ठीक है. Set variable क्या होता है? Let's say अगर मेरे सोर्स से 10 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, what it will do, यहाँ पर हम कुछ लॉजिक लिखेंगे और उस लॉजिक से इस वेरिएबल में वो वैल्यू सेट हो जाएंगी, एंड दिस वैल्यू विल बी सेट फॉर ऑल द 10 रिकॉर्ड्स.
सेट वेरिएबल क्या करेगा, पूरे डेटा सेट पे इकट्ठा वर्क करेगा, whereas set max at set min will work individually for every row. That is a theoretical definition as of now. जब मैं practically आपको डेटा के साथ बताऊंगा, you will get a good idea and a clear picture. Understood these four things: set max, set min, set count, set variable. Let's come back to the mapping variable definition and explanation. मैंने यहाँ पे डेट क्या डिफाइन किया है, 1 सितंबर 2016. सेट मैक्स वेरिएबल क्या करता है, आउट ऑफ द टू गिवन वैल्यूज क्या पिक करता है, मैक्सिमम डेट. सो यहाँ पे 1 सितंबर 2016 क्यों आया, बिकॉज हम लोग ने इसकी वैल्यू यहाँ पे ये डिफाइन की हुई है, करेक्ट ना, हाँ या नहीं. और सिस डेट लेट्स टेक एन एग्जांपल. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने जो दिया हुआ है वही ले लेते हैं हम लोग. क्या है, 6 में 2070, दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो आपके रिपोजिटरी में जाके ये वैल्यू स्टोर हो गई. सेम ये फर्स्ट टाइम जब आया था कैलकुलेट हो गया और स्टोर हो गया. सेम थिंग यहाँ पे ड्यूरिंग द सेशन रन देखो आपकी वैल्यू चेंज हो गई एंड द चेंज वैल्यू सेव्ड. अब जब नेक्स्ट टाइम आ रहा है तो मैपिंग वेरिएबल की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, हम लोग ने क्या डिफाइन किया था पहले 1 सितंबर, बट आपको ये वैल्यू नहीं मिलेगी, चेंज वैल्यू मिलेगी. इसलिए यहाँ पे आपको ये वैल्यू दिख रही है. क्यों दिख रही है, आगे आपको वो ऑर्डर ऑफ मैपिंग वेरिएबल एग्जीक्यूशन बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझेगा. एज ऑफ नाउ सिर्फ ध्यान रखिए रिपोजिटरी से पिक कर रहा है. अब मेरे रिपोजिटरी में है 6 में 2017 और डेट आ रही है 8 में 17, दोनों में से मैक्सिमम क्या है, 8 में 2017. सो दैट इज गोइंग अहेड. जब थर्ड टाइम रन होगा तो वैल्यू क्या पिकिंग करेंगे यहाँ पे, 8 में 2017. Understood? Mapping parameters and variables definition. Mapping parameter are constant values which does not changes during the session run, whereas mapping variables are those values which changes during the session run only after successful session run. अगर session fail होता है तो वो save नहीं होती है. And after the successful session run, the new value is picked in the order of mapping variable execution, which I will show you a bit later. Understood? ठीक है यहाँ तक. Any questions? नो ऐसे जरूरी नहीं है. यहाँ पे मैंने डेट कंपेयर किया हुआ है, यहाँ पे आप कुछ भी कंपेयर कर सकते हो, स्ट्रिंग कंपेयर कर सकते हो या फिर आप नंबर कंपेयर कर सकते हो, प्रोवाइडेड बोथ शुड हैव सेम डेटा टाइप. ऐसे नहीं ही आपने एक डेट डाला और एक नंबर डाल रहे हो, इट विल नॉट कंपेयर. हमेशा 4 सितंबर 2016 ही आती. रिमेंबर एक्सप्रेशन ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त मैंने आपको 3 वैल्यूज बताई थी, उसका यहाँ पर यूज होगा. मैंने आपको कहा था आगे बताऊंगा. सो दिस इज द प्लेस. व्हेनेवर डेटा टाइप इज न्यूमेरिक, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, स्ट्रिंग, नल एंड डेट टाइम 11753. ये हम लोग ने देखा हुआ है, बट आज इसका प्रैक्टिकल यूज और रियल यूसेज हम इस एग्जाम्पल में देखेंगे. अंडरस्टूड? ठीक. एनी क्वेश्चंस? यस, नो, नो, गुड. नाउ आई नीड टू शो यू एवरीथिंग दिस स्टेप बाय स्टेप. रिमेंबर मैंने मैपिंग वेरिएबल ऊपर आपको बोला था, इट फॉलोज एन ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन. दिस इज द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन. How does a mapping variable looks for a value? पहला प्रेफरेंस दिया जाता है पैरामीटर फाइल को. पैरामीटर फाइल आपको पता नहीं है, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में. सो एक फाइल होती है जहां पर हम कुछ वैल्यूज डिफाइन करके रखते हैं. अगर उसको वैल्यूज वहां पर मिलते हैं तो वो आगे नहीं जाता है ढूंढने के लिए. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. आई एम इन नीड ऑफ अ कैश ऑफ ₹10,000 और आप लोग मेरे दोस्त लोग. So let's take an example. For the first time I am going to this person, मुजाहिद, and मुझे अगर 10,000 रुपीज़ इससे मिल जाते हैं तो मैं आप लोगों से लेने आऊँगा, नहीं आऊँगा. So the same thing follows over here. अगर मैपिंग वेरिएबल को वैल्यू यहाँ पर मिलती है तो वो आगे नहीं जाएगा. अभी लेट्स से मुझे यहाँ पे वैल्यू नहीं मिली,
तो फिर वो नेक्स्ट पर्सन के पास जाएगा। एंड व्हाट इज दैट नेक्स्ट पर्सन? प्री सेशन वेरिएबल असाइनमेंट्स। ये मैं सारे चीज़ें आपको वन बाय वन प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, अभी सिर्फ आप थियोरेटिकली अंडरस्टैंड कीजिए। अगर उसको यहाँ पे भी वैल्यू नहीं मिलेंगे तो कहाँ पे जाएगा? रिपोजिटरी। रिपोजिटरी भी कहाँ रहती है वो आपको मैं बताऊंगा। अगर उसको ये फर्स्ट 3 में नहीं मिली तो कहाँ पे मिलेगी? इनिशियल वैल्यू। आई विल ऑल्सो शो यू वेयर वी डिफाइन द इनिशियल वैल्यू। अगर ये चारों जगह से नहीं मिली तो डिफॉल्ट वैल्यू तो मिलना ही मिलना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे आप लोगों से पैसा नहीं मिलता है, मुझे जितनी जरूरत थी, आई विल गो फॉर अ लोन, मुझे लोन तो मिलना ही मिलना है, फॉर एग्जाम्पल। सो डिफॉल्ट वैल्यू हमेशा अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप विल बी ऑलवेज अवेलेबल, सो वो वैल्यू मिलेंगी। अंडरस्टूड द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन? मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करके बताऊंगा विथ डेटा, विथ एक्सप्लेनेशन, सो यूल गेट अ मोर क्लैरिटी। अभी फिलहाल सिर्फ थियोरेटिकली अंडरस्टैंड कीजिए। दिस इज द ऑर्डर। पैरामीटर फाइल, उसके अंदर भी लोकल ग्लोबल बता दूंगा, फिर होता है प्री सेशन वेरिएबल, उसके बाद होता है रिपोजिटरी, इनिशियल वैल्यू एंड द लास्ट इज डिफॉल्ट वैल्यू। सो दिस इज द 5 हायरार्की 1 to 5। ठीक है, विल कीप असाइड पैरामीटर फाइल एज ऑफ नाउ। मैं उसको थोड़ी देर में, मतलब वंस वी फिनिश दिस, फिर हम पैरामीटराइजेशन पे जाते हैं, बिकॉज आई डोंट वांट टू गिव एवरीथिंग इन वन गो। एनी क्वेश्चंस टिल हियर? सो इंटरव्यूज में आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर मैपिंग पैरामीटर्स एंड वेरिएबल्स, तो आपको उनको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। व्हाट आर द डिफॉल्ट वैल्यूज, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ मैपिंग वेरिएबल, ये सारी चीजें आपको पूछी जाएगी। ठीक है, व्हाट आर द फंक्शंस। one more question will be where you can see the mapping variable values. मैपिंग वेरिएबल की वैल्यूज हम कहाँ देख सकते हैं? सेशन पे जब राइट क्लिक करोगे, ये एक ऑप्शन होता है व्यू पर्सिस्टेंट वैल्यूज। जब आप यहाँ पे जाओगे, राइट क्लिक करोगे, व्यू पर्सिस्टेंट वैल्यूज, यहाँ पे वैल्यूज दिखती है। अभी हम लोग ने अभी कुछ डिफाइन नहीं किया हुआ है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू सी, बट मूविंग अहेड वी विल बी एबल टू सी। Now let's go to my source table. This is my source table. I have some records. And let's go to my target table. I don't see any records. ठीक है? Let's go to my mapping. I'll create a mapping. Source is already imported. Do I need to import? No. Target? Yes, it needs to be imported. Import from database. Let me go to my batch study 7. Let's go to target, import from database, give the credentials, and the target table name is mapping parameter and variable. ठीक है, so मेरा target आ गया। Let's start designing the mapping. Let's drag the source, customer underscore source, mapping name is mapping parameter and mapping variable example. And let's pull in my target table. So source and target both are in place. ठीक है? Let's create a transformation and that transformation is called expression. Bring all the ports from my source qualified transformation to expression. Respectively, send all the ports from here to. ठीक है, कुछ करना नहीं है, इट इज जस्ट अ पास थ्रू मैपिंग। अब वी नो टोटल सैलरी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? करेक्ट। सो यहाँ पे मैंने इनको ड्रैग कर दिया। सो इनको सारे में क्या बना दूंगा? ऑल दिस विल बी माई आउटपुट पोर्ट्स। आई जस्ट रिमूव द इनपुट पोर्ट्स. And let's try to give a naming convention which we are following. Let's prefix all the columns because these columns are being generated from this expression and set ahead. ठीक है? Now, I need to demonstrate you mapping parameters and variables. So, how to create mapping parameters and variables? See, यहाँ पे अभी अब total salary में आप जाके क्या करोगे? You will just write salary
प्लस कमीशन, ऐसे ही किया था ना हम लोग ने। और जहाँ जहाँ पे सैलरी नल आ रहा है तो उसको रिप्लेस कर रहे हैं 0 से, कमीशन नल आ रहा है तो उसको भी रिप्लेस कर रहे हैं 0 से। यू कैन डू बाय दिस वे, और एल्स यहाँ पे आप इफ इज नल कमीशन लिख सकते हो। करेक्ट। नाउ टू डेमोन्स्ट्रेट मैपिंग, कैन यू सी दिस ऑप्शन पैरामीटर्स एंड वेरिएबल्स? यहाँ पे जाके क्लिक करना है, एक मिनट अगेन। सो मैपिंग पैरामीटर्स एंड वेरिएबल्स कैसे बनाएंगे हम लोग? विल गो टू मैपिंग हियर एंड वी विल से पैरामीटर्स एंड वेरिएबल्स। ठीक है। सो आई एम एडिंग 5 थिंग्स। वाई? 1 2 3 4 और यहाँ पे मैं बोनस ऐड करूंगा। ठीक है। सो 5 थिंग्स ऐड कर रहा हूं मैं। सो लेट्स गो विद द फर्स्ट वन। MP stands for mapping parameter, naming convention, और let's say bonus. डेटा यहाँ पे देखो कि वेरिएबल देना है या पैरामीटर देना है, पैरामीटर। स्ट्रिंग डेटा टाइप उसका जो दोगे इंटीजर, डबल, बिकॉज नंबर होल्ड करेगा, स्ट्रिंग होल्ड करेगा, डेट होल्ड करेगा, एज पर यू। प्रिसीजन स्केल। नाउ इस एक्सप्रेशन फॉल्स, ये हमेशा हम फॉल्स रखते हैं। क्यों? बिकॉज जब भी आप स्ट्रिंग कंपैरिजन करते हो तब इसकी वैल्यू ट्रू होती है। Other than string comparison, it will be always false. ठीक है। So define किया, then set max. So let me go over here. अब मैं 4 mapping variable बना रहा हूँ. So one is, let's say max cell. ठीक है। This would be variable. Let's say this would be integer. और यहाँ पर हम maximum रखेंगे, aggregation type. नाउ कैन यू सी बोनस? बोनस मैंने जो डिफाइन किया था, ये इनिशियल वैल्यू। रिमेंबर 5 थिंग्स मुझे बतानी थी, तो अभी मैं आपको कौन सी चीज बता रहा हूं? आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस 4th पॉइंट। मैं यहां से बॉटम से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है। आई एम शोइंग यू इनिशियल वैल्यू। सो इनिशियल वैल्यू लेट से मैं दे रहा हूं इसको 1000। मैक्स सैलरी को कितनी देते हैं? लेट मी जस्ट सी व्हाट इज द मैक्सिमम सैलरी। सिलेक्ट in spite of maximum salary, let me do a order by sal. That's it. ठीक है। So this is the salary 950 and maximum salary is 5000. ठीक है। So if I execute this, so 1250, 1500, so यहाँ पे आएगा, change नहीं होगा। ठीक है। That is fine for me. So what I'll do is, I'll explain you why I'm giving this value. So यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 1500। ठीक है। Max दे दिया। Let me go over here again, mapping variable. Let's say this is my min of cell. This is variable integer. Max की जगह हम करेंगे min. ठीक है। Let me see you again. अगर मैं मिनिमम देता हूँ let's say 1000, यहाँ पे 950 चेंज होती है। So let me give 1500, 1250. So it would be 1250. So if I give 1100, so let me give 1100. Let's see जो होगा देखा जाएगा आगे। So it would be 1100 as of now. ठीक है। मैं कुछ values क्यों बना रहा हूँ, I'll explain you. Hopefully थोड़ा आगे आपको समझ में आएगा। Then one more mapping variable which will be for count. ठीक है। Data type of integer and press C for count. Let's say initial value 0. So it will start the counter from 1. Then again one more last variable, and that is set date. Variable data type of date type. So here we need to give a format called 0101 and 2018. This is DD YYY. This is the format we need to follow. ठीक है। Now if you will see, I have given some values. और ये set date के लिए आप max रखो, min रखो, it does not make a difference. Why? Because with this function, what we would be doing is we would be setting the value for the entire rows. Remember मैंने आपको बोला था set variable क्या करता है? Entire rows को set करता है. Whereas set max set max variable and set min variable, it will change for every row. ठीक है। Let's अभी फिलहाल आपको समझेगा नहीं, I know it's a little overdose for you, but once I start with the explanation, all things would be clear.
सैलरी प्लस कमीशन, मुझे यहाँ पे ऐड करना है बोनस। कैसे ऐड करूंगा मैं? I'll go to variables port, built in, sorry not built in, can you see mapping parameters? Just add this. So अगर let's say यहाँ पे 1000 आ रहा है, यहाँ पे 500 आ रहा है, it will be 1500 and it will be 1000, so it will be 2500. ये मैंने कहाँ पे डिफाइन किया है? इनिशियल वैल्यू। I'll explain you, अभी जस्ट थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। फिर यहाँ पे एक फंक्शन होता है दैट इज setmax। setmax वेरिएबल में क्या कर रहा हूँ? फर्स्ट थिंग इज योर मैपिंग वेरिएबल दैट इज setmax सेपरेटेड बाय अ कॉमा, और इसको मैं सैलरी से कंपेयर कर रहा हूँ। इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो आगे जाएगी, ठीक है? जस्ट अभी फिलहाल आप देखो, आई नो इट्स अ लिटिल बट यूल गेट यूज्ड टू इट। setmin वेरिएबल अगेन मैपिंग वेरिएबल में जा रहा हूं मैं, एंड setmin वेरिएबल सेपरेटेड बाय अ कॉमा। लेट्स गो टू द सैलरी पोर्ट एंड कंपेयर दिस। set count, now if you'll see set count variable, it has only one argument। देख रहे हो पे वेरिएबल एज कैरेक्टर, it has only one argument, so I'll just pass my मैपिंग वेरिएबल विच इज काउंट। 0 दिया है, वो 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है? एंड द लास्ट थिंग इज सेट डेट, सेट वेरिएबल। सो मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, एंड इस वेरिएबल में डेट आ रही है, क्या आ रही है? 1 जनवरी। तो क्या होगा, मेरे पूरे 10 रिकॉर्ड पे 1 जनवरी होनी चाहिए, बट व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू इंक्रीज 1 मंथ। सो रिमेंबर I have used add to date function। add to date में हम लोग ने क्या किया था? dd-1 किया था SCD2 में। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? add to date में 3 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है sysdate। sysdate में से हम लोग ने क्या पिक किया था लास्ट टाइम? तो यहाँ पे पिक करेंगे mm, बिकॉज मुझे मंथ ऐड करना है। वहां पर हम लोग ने dd में से क्या किया था? -1 किया था, यहाँ पे हम सिर्फ +1 करेंगे। सो होगा क्या? सिस्टम डेट में से आज की डेट होगी, यानी कि सिस्टम, दिस इज द सिस्टम डेट, उसमें से मंथ पिक किया जाएगा विच इज अक्टूबर, उसमें एक मंथ ऐड किया जाएगा 1 विच विल बिकम नवंबर, एंड दिस नवंबर विल बी सेट टू दिस वैल्यू, एंड दिस वैल्यू वुड बी डिस्प्लेड ऑन ऑल द रिकॉर्ड्स। अभी फिलहाल इतना एक्सप्लेनेशन। लेट्स सी दिस, कॉपी द मैपिंग नेम, let's go to the workflow and create a new workflow। Let's create a task and assign your mapping, which is mapping parameter and variable। Let's link this, go to the mapping tab, source, target, change bulk to normal, no update, no delete, and truncate before load। Save this, let's execute the workflow, come to your monitor tool, it is running, got succeeded, ठीक है? 9 records read, 9 records written। We are not worried about the count, we are worried about the data, ठीक है? अब ध्यान दो, so leave all this, we need to see only this। so remember first thing हम लोग ने क्या डिफाइन किया था? यहाँ पे मैपिंग पैरामीटर्स एंड वेरिएबल। बोनस हम लोग ने कितना डिफाइन किया था? 1000। सो सैलरी 1250 प्लस 500 कितना होता है? 1750। उसमें अगर 1000 ऐड करोगे तो कितना होगा? 2750 आ रहा है। सेकेंड रो 1250, थोड़ा कैलकुलेशन छोड़ दो, 2850 प्लस 0 कितना होता है? 2850। उसमें अगर 1000 ऐड करोगे तो कितना होगा? 3850। 5000 प्लस 0 कितना होता है? उसमें 1000 ऐड करोगे तो कितना होता है? सो आपका मैपिंग पैरामीटर चेंज हो रहा है? नहीं चेंज हो रहा है, इट इज कांस्टेंट। अंडरस्टूड? लेट्स कम टू द सेकंड थिंग, मैक्सिमम सैलरी। रिमेंबर सेट मैक्स फंक्शन, out of the 2 given values it will pick the maximum value। और variables क्या होते हैं? during the session run change होते हैं, and the change value is saved in the repository। ठीक है, let's go। कितना डिफाइन किया है हम लोग ने?
1500, ठीक है। सो अब मेरा 1500 डिफाइन किया हुआ और यहाँ पे 1250 है, दोनों में से मैक्सिमम क्या है, तो देखो यहाँ पे 1500 सेट हुआ। अब ये 1500 आपके रिपोजिटरी में जाके सेव हो गया, नेक्स्ट रो के लिए वापस आया। 1500 और 1250 दोनों में से मैक्सिमम क्या है, हाँ 1500, वापस ये सेव हो गया। 1500 और 2850 दोनों में से मैक्सिमम क्या है, 2850 आया। 2850 जाके सेव हुआ। 2850 और 2450 में से मैक्सिमम क्या है, 2850, वापस आया। 5000 और 2850 में से मैक्सिमम क्या है, 5000। So there is no salary after this which is greater than 5000. That's why for every row it has written 5000. देख रहे हो, ये हर रो के लिए चेंज हो रहा है, but constant was not changing. Understood? उसी तरह अभी मिनिमम देखते हैं। So minimum हमने कितना डिफाइन किया था, 1100, ठीक है। 1100 और 1250 दोनों में से मिनिमम क्या है, 1100। 11 1250 दोनों में से मिनिमम क्या है, सो कोई सैलरी है ही नहीं। सी आपका क्वेश्चन 1100 और 1100 क्या आ रहा है, सो 1100 आ रहा है। नाउ आई डोंट नो विच 1100 बट 1100 आ रहा है। अब 1150 और 950 दोनों में से मिनिमम क्या है, सो 950 आया। 950 और 1300 उसमें मिनिमम क्या है, सो देयर इज नो सैलरी लेस देन दिस, सो दैट्स व्हाई द आउटपुट इज दिस। सेट काउंट रिमेंबर हम लोग ने 0 सेट किया था, सो 1 से ही स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रिमेंबर 21st November. So why it is coming 21st November? Let me. Okay. I'm real sorry. So October में हम लोग ने एक मंथ ऐड किया था, so that is coming November. And can you see, मैंने आपको कहा था set variable पूरे rows के लिए डेटा सेट करेगा, whereas set max and set min it will change for every row, but this is not changing. Understood? Set max, set min, constant. Yes, no, please tell me. This is very important. ये जो अपडेट वाला है इसमें अगर हम articles को subject date plus 1 किया हमारे पास। Remember मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, how to see the repository values, how to see mapping values. यहाँ पे क्वेश्चन है, where you can see the mapping variable values. पहले हमको नहीं दिख रही थी ना, अब जब यहाँ पे आप जब जाओगे राइट क्लिक एंड व्यू persistent value, see आपको मैपिंग। मैक्सिमम कितनी सैलरी सेट है, मिनिमम कितनी है, काउंट कितना है, डेट क्या सेट है, MM DD YY, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा डेटा मॉडिफाई करता हूँ। सो दिस इज द डेटा, वहाँ से 5000 आएगा और सैलरी इज, तो मैक्सिमम यही 5000 रहेगा। 5000 पूरे रिकॉर्ड्स के लिए 5000 आएगा। सो मैं क्या करता हूँ, 28 5000 को 7698, let me update this, update customer underscore source set salary equals to 5500 where my employee number equals to 7698। ये डेटा इसलिए चेंज कर रहा हूँ, आपको पता चलेगा, अदरवाइज क्या होगा, मेरा आउटपुट ना पूरा कांस्टेंट आएगा, तो आपको मतलब स्टिल यू विल अंडरस्टैंड, बट लेट मी अंडरस्टैंड विद द प्रॉपर डेटा, ठीक है। एक रिकॉर्ड अपडेट किया, सो यहाँ पे 5500 आएगा, 5500 आएगा। लेट्स से इसको हम चेंज कर देते हैं 6000, 7876। लेट मी चेंज दिस टू 60007876, ठीक है। एंड लेट मी एग्जीक्यूट दिस, ठीक है। मैक्सिमम सैलरी हम लोग ने कर दिए, मिनिमम देखते, मिनिमम कितना आ रहा है, 900, करेक्ट। 900, इसमें से 900 आएगा, इसको चेंज कर देते हैं, we'll change it to 800, we'll change this to 800 and 7782, ठीक है। let me run this query again, 800 आएगा, 800 950 600, so ठीक है। 950 को हम कर देते हैं let's say 750, ठीक है। उसका एम्प्लॉय नंबर क्या है, 7900। I have done some data, I have cooked some dummy data to show you a proper example, ठीक है। अभी मैं कौन सा आपको मेथड बता रहा हूँ, रिपोजिटरी, सेकंड मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। हम लोग ने पहले कौन सा देखा, इनिशियल वैल्यू जो हम लोग ने डिफाइन किया था। अब मैं जब रन करूंगा तो कहाँ से पिक करेगा, रिपोजिटरी से। सो व्हाट आई विल डू, आई विल नॉट डू एनीथिंग,
राइट क्लिक, स्टार्ट द वर्कफ्लो। स्टार्ट द वर्कफ्लो के पहले अगर आप ये वैल्यू ध्यान में रख सकते हो तो इट वुड बी वेरी ग्रेट। सो आई व्हाट आई डू इज आई कीप दिस एंड आई रीस्टार्ट द वर्कफ्लो फ्रॉम हियर सो दैट विंडो वोंट गो। ठीक है, रन हो रहा है, सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। लेट्स एग्जीक्यूट दिस क्वेरी एंड वी आर वरीड अबाउट द डेटा। लेट्स कम ओवर हियर, लेट्स कम टू डिजाइनर। मैपिंग पैरामीटर हम लोग ने कितना डिफाइन किया हुआ है? बोनस कितना डिफाइन किया हुआ है? हाँ, 1000। लेट्स कम ओवर हियर। 1250 प्लस 500 कितना होता है? 1750। अगर उसमें 1000 ऐड करोगे तो कितना होगा? 5500 के अंदर 0 ऐड करो तो आउटपुट क्या रहेगा? 5500। उसके अंदर 1000 ऐड करोगे तो देखो आपका मैपिंग पैरामीटर चेंज हो रहा है इवन आफ्टर सक्सेसफुल सेशन रन? नहीं हो रहा है, इट इज कांस्टेंट। अंडरस्टूड? अब मैपिंग वेरिएबल देखते हैं। रिमेंबर इनिशियली मैपिंग वेरिएबल हमने कितना डिफाइन किया था? 1500। ये 15 पहले वक्त क्या हो रहा था? 1500 और 1250 दोनों में से मैक्सिमम क्या था? तो यहाँ पे आउटपुट में 1500 आ रहा था। बट अभी इनिशियल वैल्यू के पहले क्या आता है? रिपोजिटरी आता है। तो अभी हो क्या रहा है? उसको रिपोजिटरी में वैल्यू मिल रही है, मैक्सिमम सैलरी 5000। सो जब उसको रिपोजिटरी में वैल्यू मिल रही है तो इनिशियल वैल्यू के पास जा ही नहीं रहा है, तो कहां से वैल्यू पिक कर रहा है वो? अभी रिपोजिटरी से। सो 5000 और 1250 दोनों में से मैक्सिमम क्या है? 5000 1250 में से मैक्सिमम क्या है? 5500 दोनों में से मैक्सिमम क्या है? 5500। देखो यहाँ पे 5500 और 6000 में से मैक्सिमम क्या है? अंडरस्टूड? मैंने डेटा चेंज क्यों किया? अदरवाइज सारे रिकॉर्ड्स पे आउटपुट क्या आता था? 5000। तो आपको थोड़ा मतलब वैसे भी समझता था बट स्टिल ये थोड़ा अच्छा डेटा है। अंडरस्टूड? यस या नहीं? मिनिमम वैल्यू हम लोग ने 1100 डिफाइन की थी इनिशियली। जब फर्स्ट टाइम रन किया तो वैल्यू हो गई 950। अब आउटपुट 950 और 1250 में से मिनिमम क्या है? 950। पहले आउटपुट क्या आ रहा था? 1150 आ रहा था। अभी 950 क्यों आ रहा है? बिकॉज इट इज पिकिंग द वैल्यूज फ्रॉम रिपोजिटरी। रिपोजिटरी के आगे जाना ही नहीं है व्हेन आई एम गेटिंग द वैल्यूज। सो 950 से कोई सैलरी है नीचे? यस, एंड दैट इज 800। सो दोनों में से मिनिमम क्या है? 800। फिर 800 और 750 में से मिनिमम क्या है? 750। So let's see pre-session variable assignment. Now we have seen every time we are running just to see. I'm not explaining you all the thing. मैं सिर्फ अभी एक वैल्यू पिक कर रहा, अभी ना आपको सारी चीजें पता है। Now if I run again तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा? 28 से स्टार्ट होगा, करेक्ट? मैं चाहता हूँ कि जितनी बार भी मैं रन करूँ my value should start from 1. Understood this problem? I'll stop this. Now let's see the second one is pre-session variable assignments. ठीक है? Now what I am doing is I am going to my mapping. Understood the scenario? हमको करना क्या है? Every time if I run, this should start from 1. So let's go to the mapping, workflow. यहाँ पर मैं जा रहा हूँ, edit कर रहा हूँ and I am going to the variables option. ठीक है? यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ एंड नेमिंग कन्वेंशन वुड बी wv_count. ठीक है? डेटा टाइप ऑफ इंटीजर एंड द डिफॉल्ट वैल्यू इज 0. ठीक है? डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे 0 दे रहा हूँ. सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव क्रिएटेड वर्कफ्लो वेरिएबल, नॉट मैपिंग वेरिएबल. मैपिंग वेरिएबल इज डिफरेंट, वर्कफ्लो वेरिएबल इज डिफरेंट. बनाया मैंने. आई एम क्लिकिंग ऑन दिस सेशन. कैन यू सी दिस कंपोनेंट्स टास्क? यहाँ पर एक ऑप्शन होता है प्री सेशन वेरिएबल असाइनमेंट. प्री सेशन वेरिएबल असाइनमेंट में मैं पेंसिल आइकन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं ऐड करूंगा. व्हाट आई विल से, जो मैंने वर्कफ्लो वेरिएबल पे डिफाइन किया हुआ है वो मैं किसको पास करूंगा? मेरे मैपिंग वेरिएबल को. यानी अभी यहाँ पे कितना है? 27 है ना. तो यहाँ से मैं क्या पास कर रहा हूँ उसको? 0. और 0 हो जाएगा फिर हमेशा क्या होगा? वो 1 से स्टार्ट होगा. लेट्स सी दिस, लेट्स रन एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस.
It's getting executed. 9 rows red. See पहले 27 था. Now let's see the output. Can you see once से start हुआ? Again I will अभी देखोगे आप यहाँ पे मेरी रिपोजिटरी में वैल्यू क्या दिखेगी आपको? 9. Correct? But if I start this workflow again, ideally it should have started from 10. But हम लोग ने उसको दोबारा वैल्यू रीइनिशियलाइज किया और वापस उसको 1 से स्टार्ट किया. Understood? Pre-session variable assignment. Let me resume this. Now let's see parameter file. Now parameter file is a generic dynamic file creation sometimes. So what parameter file gives us is, it gives us a flexibility to define some values in files so that it can be reused at multiple places. Now to create a parameter file we need to follow a syntax, and this is the syntax which we will always follow. Open square bracket, close square bracket, folder name dot. So folder name के जगह आप आपका actual work folder name दोगे. So what is my folder name as of now? So what I'll do, I'll create my, okay, I think I can copy from here also to my local system. Let me see if I can do that. Control C and yes, bidirection करके रखा है मैंने, so it is getting copied, so I can show it over here. Now, what is my folder name? Batch 37. देखोगे यहाँ पे अगर आपको दिखेगा Batch 37 और आपका folder name क्या रहेगा? Transformations. ठीक है? So how to do that? I'm just showing you. See, right click, go to the properties tab, Control C, Batch 37. मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना था? Folder name dot. सी यहाँ पे मैं हटाकर फोल्डर नेम दे रहा हूं. फिर उसके बाद क्या आ रहा है? WF कोलन. दिस इज द सिंटैक्स. तो उसके आगे मुझे क्या देना है? वर्कफ्लो नेम. सो मैं ये वर्कफ्लो नेम यहाँ से हटा रहा हूँ. सो हियर इट शुड कम WF कोलन. उसके बाद क्या आना चाहिए? वर्कफ्लो नेम. सो वर्कफ्लो एडिट, कंट्रोल C. सो यहाँ पर मेरा क्या आएगा? वर्कफ्लो नेम. फिर डॉट WT इज नथिंग बट योर वर्कलेट. वर्कलेट आगे पढ़ाऊंगा, अभी इग्नोर कीजिए. ST स्टैंड्स फॉर सेशन नेम. तो यहाँ पे मुझे क्या देना है? सेशन नेम. कॉपी जो किया हुआ है उसको पेस्ट करो और ये WF अंडरस्कोर जो प्रीफिक्स है उसको निकाल दो. अंडरस्टूड? कैसे बनाओगे आप ये? फर्स्ट लाइन बन जाएगी हमसे, यस या नहीं? यस. $DB connection, as I told you, this is the default parameter. Remember उस दिन मैंने आपको help में जाकर बताया था. So यहाँ पर आप देखोगे, if I do a double click on this, if I go to my mapping tab, source, जब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ use connection में, see, can you see this? This is the default. Source है ना, इसलिए मैं यहाँ पे underscore source लिख रहा हूँ. Copy this and paste this over here. कर पाएंगे? ये नेम कहाँ से आएगा? Abbey Stage Rapid Santander. This is already from here only. अगर आप ये करते हो, this is the name. Sorry, this was the name. तो आप इसको बस override पे क्लिक करो and copy it from here. Yes. So मेरे केस में I think this is the name. This is the name. So I'll copy this only, which is already being copied. ठीक है? So this is already done over here. $DB connection underscore TGT भी कर पाओगे? कैसे करेंगे हम? सिर्फ टारगेट में जाना है मुझे, यहाँ पे जाना है यूज कनेक्शन वेरिएबल, इसके आगे लगाना है TGT और $DB कनेक्शन अंडरस्कोर TGT की वैल्यू क्या है? Abbey Star Rapid Santander. ये आप कॉपी करोगे और कहाँ पे पेस्ट करोगे?
यहाँ पे पेस्ट करोगे, हो जाएगा यहाँ तक। गुड। अब आते हैं इन 4 वैल्यूज पे। अब मैपिंग पैरामीटर बोनस हम लोग ने कितना डिफाइन किया इनिशियली, 1000 डिफाइन किया, तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 2000। मैक्सिमम सैलरी कहाँ से पिक कर रहा है वो, रिपोजिटरी से पिक कर रहा है ना, तो रिपोजिटरी में अभी कितनी है मैक्सिमम वैल्यू, 6000। तो इसको हम थोड़ा और बढ़ा देते हैं, इसको कर देते हैं लेट्स से 7000। ठीक है, मिनिमम वैल्यू हमारी कितनी है, 750 है ना, सो कर देते हैं लेट्स से 600। ठीक है, सेट काउंट हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमेशा 1 से स्टार्ट हो रहा है। हम लोग ने डिफाइन किया है 0 से, बट हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ 101 से स्टार्ट हो। मेरी अप्रैल डेट सेट है ना, सॉरी जून है अभी, जून 1 2018 दिख रही है आपको, मैं इसको सेट कर देता हूँ 2000। आई कैन डू एनीथिंग, करेक्ट ना, कर दिया मैंने ये सारे चेंजेस। आपको बस ये कॉपी करना है, पाथ पता है ना कहां से जाओगे, you'll go to my computers, iDrive, Informatica, 9, सर्वर, InfaShared, सोर्स और टारगेट में जाते थे ना हम लोग, अभी कहां पे जाएंगे, BW पैरा। यहां पर हमेशा आपकी पैरामीटर फाइल्स बनती है। ठीक है, राइट क्लिक, न्यू टेक्स्ट, दिस इज माय बैच 37, sorry, this is my batch 37.parm, PARM, whatever extension if you want to give, it's your call. Double click, Control V, कर पाएंगे, save this, let's copy this path, come to your workflow, workflow पे जाके edit, you go to the properties tab, पेज दिस, पाथ प्लेस किया हम लोग ने, फाइल नेम भी देना है ना हमको, तो इस पे F2 करके कॉपी द फाइल नेम एंड कम एट द एंड एंड गिव योर बैच 37.py। सो सारा हम लोग ने अभी हार्ड कोड से पैरामीटराइज किया, और अभी हम लोग क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, वी आर डेमोन्स्ट्रेटिंग पैरामीटर फाइल विथ दिस। सो जब मैं रन करूंगा, जब उसको यहाँ पे वैल्यूज मिलेगी तो वो आगे जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि उसको वहीं पे वैल्यू मिल रही है ना। सो लेट्स रन दिस नाउ, लेट्स सी फेल होता है, सक्सीड होता है, व्हाट होता है, क्या होता है। सक्सेसफुली सक्सीडेड, डेटा देखते हैं बिकॉज वी वांट टू इवैल्यूएट द डेटा। देखो यहाँ पे 0 क्यों आ रहा है, salary plus commission, there are 2 records got inserted। ठीक है, that's not an issue। so 0 plus 0 0 होता है, और रिमेंबर हम लोग ने पैरामीटर फाइल में क्या ऐड किया है, 2000 ऐड किया ना, सी यहाँ पे 2000 ऐड किया। इनिशियली कितना डिफाइन किया था, 1000, बट वो कहाँ से पिक कर रहा है, पैरामीटर फाइल से, बिकॉज यहाँ पे मिल रहा है तो आगे क्यों जाएगा, बराबर ना। किसका भी देखो 1250 प्लस 500 1750, पहले इसमें 1000 ऐड हो रहा था, अभी 2000 ऐड हो रहा है, अंडरस्टूड। उसी तरह मैक्सिमम सैलरी 6000 और यहाँ पे 12000 क्यों आ रही है और 18000 क्यों आ रही है, आफ्टर एवरी 3 records it is changing, why, बिकॉज आपकी सैलरी यहाँ पे अपडेट हुई है। हाउ डिड माई सैलरी गॉट अपडेटेड, 12,000, 18,000, all these values are getting updated, that is the question। ठीक है, let's move ahead, let's not stop। so parameter file में मैंने define किया था, what was my maximum salary I have defined as 7,000 और 0 में से maximum क्या है, this is 6,000, there is something wrong, let me stop this। ठीक है, so now remember, so
let me come over here. Now let's go to this. So if you will see 2000, so 1250 plus 500 it's coming 1750 and bonus add हो रहा है आपका 2000 which is becoming 3750. मैक्सिमम सैलरी यहाँ पे 7000 दिया है और यहाँ पे अगेन 18000 आ रहा है. इशू ये है कि ये जो वैल्यूज है, these values, sorry, this names and this names are not correct. That's why it is picking those values from another parameter file जहाँ पे ये set कहीं तो उसको मिल रहा होगा. So that's why what we need to do is we always have to remember this name and this name should be always identical. So let me change this. Let me change for all the four. Let me change this set count and set date also. ठीक है. Let's change the values also. अब what is the value which is coming? So यहाँ पे कितना आ रहा है? 1250 हम लोग ने 2000 ऐड किए ना, करेक्ट? सो यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं, अभी 5000 ऐड कर देते हैं और लेट्स से 3000 ऐड कर देते हैं. मैक्सिमम सैलरी 18000 आ रही है ना, तो हम कर देते हैं 20000, है ना? 20000. मिनिमम 600 आ रही है ना, कर देते हैं हम 500. काउंट 100 से स्टार्ट हो रहा है, 101 से, so 201 से स्टार्ट करते हैं. 2000 2020 कर देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. वी आर जस्ट चेंजिंग द डेटा सेट. So let's run this again. Now it should pick the correct file, correct database and correct values. Let's execute this query again. Let's come to the data set. Now 1250 plus 500 is 1750. 1750 के अंदर अगर आप 3000 ऐड करोगे तो it will become 4750. Let's see one more. 6000 plus 0 is 6000. उसके अंदर 3000 ऐड करोगे तो 9000. सही आ रहा है? So mapping parameter is always constant. Any questions? No. See, 20,000 दिए थे हम लोग ने, यहाँ पे 20,000 आ रही है. There is no salary which is greater than 20,000. So that's why सारे रोज पे 20,000 आ रहा है. ये तो समझ पा रहे हैं ना अभी हम? Minimum is 500. काउंट हमने 200 दिया था तो 201 से स्टार्ट हुआ. यहाँ पे जनवरी 1st 2020 था तो यहाँ पे 1st February 2020 होगा. So now where it is picking the data? From your parameter file. अगर parameter file define की है आप लोगों ने, so it will always pick the values from your parameter file. Now what is default value? So if it is going to the parameter file, अगर parameter file में values नहीं मिलते हैं, प्री सेशन में नहीं मिलता है, रिपोजिटरी में नहीं मिलता है, इनिशियल में नहीं मिलता है, तो कहाँ से पिक करेगा? डिफॉल्ट वैल्यू. लेट्स डेमोन्स्ट्रेट दिस. सो व्हाट आई विल डू इन दिस, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ. कौन से पैरामीटर वेरिएबल को हटाया? डेट. ठीक है, वहां से हटाना है. और प्री सेशन में तो मैंने डिफाइन नहीं किया हुआ है. यहाँ पे रिपोजिटरी से भी मैं उड़ा देता हूँ. ठीक है, और यहाँ पे मैपिंग वेरिएबल लेवल, पैरामीटर वेरिएबल लेवल पे इसको मैंने डिफाइन किया है ना, यहाँ पे, यहाँ से भी उसको उड़ा देते हैं हम लोग. कहीं पे नहीं रखते उसको. सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और इसको रन करते हैं. तो आउटपुट क्या आएगा मेरा? कैन एनीवन से व्हाट विल बी द वैल्यू? Date will be 1173. Yes, yes. So it would be 1st February 1753. See, 1st February 1753. ना ही उसको वैल्यू वो पैरामीटर फाइल में मिली, ना ही प्री सेशन में मिला, ना ही रिपोजिटरी में मिली और ना ही इनिशियल में मिली. डिफॉल्ट तो मिलना ही मिलना है अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप. सो दिस वैल्यू, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप, इसके अलावा क्या हो सकते हैं डेटा टाइप्स? बीलॉब, सीलॉब, जो हम लोग हाईली यूज नहीं करते. मेजॉरिटी हमारे 99% यही डेटा टाइप्स होते हैं. सो उनका डिफॉल्ट वैल्यू तो मिलना ही मिलना है. सो इट विल ऑलवेज लुक इन दिस सीक्वेंस. अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चंस इन दिस? This is applicable only for mapping variables, not for the mapping variables.
Now, what I am doing is, I am trying to show you the explanation of local and global. So I am writing here a global keyword. Let me copy, not parameter जो हम लोग ने delete किया था. Let me bring that value again. So let me copy this, paste this over here. इसकी वैल्यू देते हैं 0101 2000. इसकी वैल्यू देते हैं यहाँ पे 0101 2018. Let's save this and let's execute this flow. Come to your monitor tool, successfully completed, and this is executing. So if you'll see 1st February 2000. So it will always give the first preference to your local sets. अगर आपने इस फोल्डर के अंदर आपका ये वर्कफ्लो है और इस वर्कफ्लो के अंदर ये सेशन है, उस सेशन की अगर आपने ये वैल्यू डिफाइन की हुई है, इट विल ऑलवेज पिक दिस वैल्यू. अगर आप ये वैल्यू डिफाइन नहीं करते हो, सो इट विल पिक द ग्लोबल वैल्यू, बिकॉज उसको लोकल में कुछ मिल ही नहीं रहा है. So if we run this query again, see, it's changing to 10. So local और global का concept कैसे आता है? Whenever you want के now in this parameter file, let's take an example. There is one more workflow defined. ठीक है? So there is another session. Let's say underscore test. Just for an explanation. What I want, इसकी वैल्यू स्टार्ट हो 500 से और इसकी वैल्यू स्टार्ट हो 100 से. So I can define at local level. But what I want, इन दोनों का सोर्स कनेक्शंस और टारगेट कनेक्शन सेम रहेगा ना. So that will be same for both the things. So आप यहाँ से रिमूव कर दो और यहाँ पे लगा दो. Globally. So for all the workflow sessions, it will pick the same source and target connection names. Coming to the individual value, these individual value picked for this workflow, this individual value will be picked for this workflow. तो local हमेशा preference दिया जाता है to the individual variables, और अगर आपको लगता है कि values are same for the entire thing, आप उसको global में define करो. So that is the concept of global and local. The word itself suggests globally means everywhere and local means to individual. So that is the concept of global and local. So this is the hierarchy parameter file. In parameter file, global and local concept, pre-session variable, repository, initial value and default value. So this is the concept called mapping parameters and variables. It's a very important concept and a very good concept which is highly used and asked in interview also. Any questions which needs to be addressed? I'll stop this now. I think I have